रिलेशनशिप अच्छा हो, हमारा हेल्थ अच्छा रहे। बहुत सारे रीजंस होता है कि हम लोग डिफरेंट त्योहार मनाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन आज ऐसे वक्त आ गया कि हमको डायबिटिक डे मनाना पड़ रहा है। ये जरूर हमारे लिए दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, एक गुड न्यूज है। जी, हमारा ये जो कम्युनिटी है, जिनका फाउंडर जिनका मेंटरशिप में चल रहा है मिस्टर दिलीप मिश्रा जी, इनके लिए एक जोरदार ताली हो सकता है। और आप सबके लिए भी मेरे तरफ से, सबके तरफ से जोरदार एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। दोस्तों, आज जो हमारा पहला स्पीकर है, वो पैसे में तो एक डॉक्टर है। डॉक्टर का काम बेसिकली क्या होता है कि डिजीज हो और पेशेंट को मेडिसिन देके या सर्जरी करके ट्रीटमेंट करना। लेकिन ये डॉक्टर तो काम करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, ताकि इससे पहले जो काम का जरूरत होता है कि डिजीज का प्रिवेंशन करना, वो काम वो करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि डिजीज आपका ना हो, लोगों को हेल्प करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा यंग, एनर्जेटिक, वेरी डायनेमिक, वेरी सिंपल पर्सन। और अपना हेल्थ को वो ट्रांसफर, एक एक बात क्लियर कर देता हूं, यहाँ जितना सारे स्पीकर से वो खुद के लिए पहले अप्लाई करते हैं, फिर दूसरों को हेल्प करते हैं करने के लिए। एक रिक्वेस्ट आप सबको, अगर ऐसा पाबंदी नहीं है, आपका किसी का ऐसा पाबंदी नहीं है, आप अगर आपका वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो विथ योर हेल्प आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन दी डिजिटल स्क्रीन डॉक्टर प्रभात मिश्रा। मिश्रा जी, आपको मेरे तरफ से नमस्कार, और मैं आपको स्वागत करता हूं आज ये सेशन पे। प्लीज, नाउ द स्क्रीन इज योर्स। Thank you, Surya Ranjan ji. Uh, he has introduced me, but let me tell myself. I am Dr. Prabhat Mishra. So we will be discussing about medical part of diabetes. What is diabetes? As you all know, high level of sugar in the blood. But what is that level? And why it happens? What are the different types? Now let me just ask yourself a question. If somebody says a person, he has a heart problem, and somebody says he has a diabetes, where he gets panic? Normally heart problem. Why so? That is the reason why diabetes has taken a backbench. And that is a major reason why it is on the high rise. And you know, diabetes is mother of all disease. It's not a severe disease. It's just a disorder. It's just a high rise in the blood glucose level or blood sugar level. But the consequences are so many that one should be careful. Before going to what is diabetes, let me tell you there are three types of diabetes. One is type 1, which is commonly seen in the children. Number 2 is gestational, commonly seen during pregnancy. And number 3 is type 2. I will be discussing about type 2 diabetes, and I'm going to give more emphasis on a condition called syndrome X, that is pre-diabetes. Now, what is diabetes? It's just a metabolic disorder. It's a lifestyle disorder. It's a chronic disease that occurs when blood glucose or blood sugar level is high.
Maybe because the body does not produce enough insulin, or the cells of the body cells, are insulin resistant, and the body cannot regulate the blood sugar level. How to know that the blood sugar level is high or low? You will tell, it's very commonly known. Just do any three types, either fasting or postprandial or post glucose or a random blood sugar level. That's fine. Many people, they do only a fasting blood sugar, and if it is within the normal range or yes, little above, they are happy and they stay calm, cool guy. But my dear friends, the actual test is you have to undergo three tests. One is a fasting blood sugar, then 2 hours post glucose or post sugar, post breakfast glucose level, and most importantly is HbA1c. Now, what is HbA1c? HbA1c will tell you your blood glucose level for the last 3 months, and it can give you an average blood sugar level. Now, I'll tell you the normal range. Let me congratulate each of you who has a HbA1c below 6. Congratulations. You are in the safe zone. But be happy, but take care. Then there is a range called 6 to 6.5. That's the most dangerous. In this range, normally people don't feel, are not diagnosed, and that level is called pre-diabetic. And if it is above 6.5, you are declared as a diabetic. What could be the possible causes? The most important cause is insulin resistance, because the cells in the muscles, in the fat, and in the liver, they don't respond properly to the insulin. The other causes or the factors responsible for high rise blood sugar level could be related to, linked to weight, like overweight or obese, physical inactivity, family history, race and ethnicity, age after or above 35, diet, particularly eating highly processed food, high carbohydrate and saturated fats. These foods contribute to insulin resistance. Certain medications like corticosteroids, certain hormonal disorders like hypothyroidism, prolonged stress, anxiety, worries, depression, and improper quality sleep. Now, friends, why this diabetes cases is on rise in India and globally? Now, let us talk about India. You might have heard, or the history speaks, that in India earlier there were flood, there were famine, there were droughts, where people don't get food for a long time. And people are habituated with less eating or starving. And lifestyle was different. Physical activity was on the rise. But that is the reason why the gene responded well and there are less number of diabetic cases. But with the passage of time, with modern technology, research and development,
people get enough variety of fast food, junk food, all those stuff. And with the R&D, there have been less physical inactivity. People used to sit for hours together, long hours, in the chair for their duties. And with these changes over time, there is also a genetic change. And that is the reason why diabetes is on the rise. This is the science behind it. You have to understand that. What could be the possible signs and symptoms? Frequent urination, thirst, constant hunger, weight loss without any procedures. Not maintaining the same food habit, but without any physical activity, and he's going on a weight loss continuous. Vision changes and feeling fatigue. As I said, diabetes is a disorder, but the consequences are alarming. It can cause or affect heart and blood vessel, and the results you know. It can affect your nerve, the disease called diabetic neuropathy. When it affects kidney, it is called diabetic nephropathy. When it damages your eye, it is called diabetic retinopathy. You might have heard or might have seen people, diabetic people, having damaged food. They are called diabetic food. You might have heard of people whose foot were amputated, cut, chopped off. There are certain skin conditions. There may be hearing impairment. There may be a depression, Alzheimer's disease, and very commonly, oral conditions in the diabetes is on the rise. Incidence. In India, pan-India, if you say, it is 11.4%. That is, around 100 million people in India are now diabetic, according to ICMR. But the most alarming is 15.3% of Indian population are pre-diabetic, and they can go to diabetes at any point of time. But if you look state-wise, Kerala is number 1 with 25.5%, followed by Goa. And the common age has been seen above 50. But above 35, it has been reported. Many cases have been reported. Now, why people having pre-diabetic conditions do not know? They have not done their routine checkup after the age of 35. And it is not diagnosed for years together. But it is diagnosed only through when investigations for other diseases or for any emergencies have been done. As a dentist, I'll tell you, I have, in my long span of career, I have helped people to know that their blood sugar level is on the high rise. And as a dentist, I can tell you the other way also. I have clearly told many people that they are diabetic, even though they were not diabetic. Ask me how? Because you know, dentists are working in close proximity with the mouth. And there is a smell, there is an odor that is called fruit odor. Fruity smell will come, sugary smell will come. And they were astonished. And one investigations, they have been detected with high rise of blood sugar level. It's quite common. What are the medications, medical treatment? Once you have a blood sugar level high,
First and foremost, I'll advise you, consult a diabetologist or a physician for medical treatment. There are many oral medications and insulin, but the road does not end there. Once you are diagnosed with a high rise of blood sugar level or pre-diabetic level or on the borderline, I'll suggest you not only you consult a physician or diabetologist, but you consult also a board consisting of a doctor, board consisting of a nutritionist, board consisting of a maybe a yoga specialist or a trainer or an exercise specialist, and the board must include you. That is a complete board. Good news. Bad news is it can take away many lives. It can hit many organs. It can do any wonders. But the good news is diabetes can be reversed. I have seen many cases where diabetes have been reversed. I have seen many cases, the last 20 years, they have been on the same drug. Let's say if it is metformin 500, it is metformin 500. That's a great news. But to control, to combat, and to reverse diabetes, the person needs a commitment, a serious involvement. It's nice of you to hear that we have a board. We have a board of doctors. We have a board of certified nutritionists, Mr. Dilip Mishra, whom you will be listening shortly. And we have board of physical trainers, yoga specialists. If you want any of your family member, any of your contact, any of your colleagues is on that group, refer them to the board. The board will take care. I hope, I believe, I never wanted to tell you deep into the medical science, superficially, which is basic, which can be easily understood by a common person. I have shared my thoughts. Hope if you must have understood it, and if it can be beneficial to you or through you, any person in the whole world, not only you will get the blessings of God, but we all will get the blessings of God, which is priceless. Thank you very much. Over to Swarupra. Thank you, sir. It was really a wonderful presentation. I'm not really getting words to praise you. इतना कम समय में इतना जबरदस्त एक डॉक्टर होते हुए जिनका कि बेसिकली नॉलेज रहता है, डिजीज हो इसके बाद ट्रीटमेंट हो, लेकिन ये प्रिवेंशन के ऊपर इतना ध्यान देते, इतना फोकस करते प्रिवेंशन के ऊपर। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई चैलेंजेस आता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आता है, कोई ना कोई महापुरुष का जन्म होता है। तो ऐसे हमारा साथ एक ऐसे आई कैन से एक महापुरुष से हम सबका, बहुत सारे लोगों का इधर गुरुजी है। तो मैं उनसे सुनूंगा कि डायबिटिक होने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए, और जिनको हुआ नहीं है वो कैसे इसको प्रिवेंट कर पाएंगे, विदाउट मेडिसिन कैसे वो अपना जिंदगी को मतलब ही कैन टेक हिज लाइफ अनवर्ड्स। तो विथ योर हेल्प आप म्यूट रहते हुए उनके लिए एक जबरदस्त एक वर्चुअल क्लैपिंग दे सकते हैं। विथ योर हेल्प लेट मी इनवाइट ऑन द स्क्रीन Mr. Dilip, please. Now the screen is yours, sir. Please. Thank you, Sunilji. Good evening, everybody. And have a big clap for Dr. Mishra. What a wonderful talk within a short span of time. He has
explained a lot of things about diabetes. If you have listened it, so definitely it has might have hit your head. And lastly, he concluded with the diabetes reversal. Yes, it is. We have got some testimonies. Here, my job is not to talk about diabetes, but I am a certified nutritionist. I'm not a doctor. I'll not give any medical advice, anything else. But how we can reverse the lifestyle disease also, that I'll be talking to you. How we can reverse the lifestyle diseases. So पहले मेरा मेरा बारे में थोड़ा सा आपको मेरा स्टोरी बता दूं, जैसे होस्ट जी ने बताया। और मेरा नाम दिलीप मिश्रा। वे बैक मेरा स्टूडेंट टाइम पर मैं देखा, उस टाइम पर आई वाज क्वाइट खाता पीता और बहुत एक्टिव लाइफ था, खेलकूद करता था। इट्स ओके एवरी फॉर इट इज ओके फॉर एवरीबॉडी। द मोमेंट आई केम टू माय जॉब लाइफ, आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग्स and food at outside hotels, developed constipation, acidity, gas. Anyway, that continued a lot, and a doctor told me you should change your profession. Otherwise, the kind of uh, professional habits, taking food in hotels regularly, it will affect your health. Then I changed my profession. I started my distribution business as Katak. 17 साल बिजनेस करता है। उस टाइम पर मैंने ब्लड प्रेशर लेवल शूट अप किया, और धीरे धीरे ये कोविड का पहले मेरा ब्लड शुगर भी बॉर्डर लाइन में 5.9, मतलब HbA1c लेवल चला गया। सो दैट इज a pre-diabetic condition. Then my daughter and son-in-law, they are doctors in KIMS, Bhubaneswar. I consulted them, the owner बताया तो मेडिसिन में चलता है। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जब मेडिसिन लेके जिंदगी भर, जैसे मैं देखा हूँ मेरा एक ब्रदर इन लॉ जीजा जी, जो जिंदगी भर मेडिसिन चलते रहा, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, इंसुलिन में गया, धीरे धीरे एक कुछ ऑर्गन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। सो आई वाज वेरी स्केयर्ड, कैसा क्या करें। सो आई वाज सर्चिंग। फॉर्चुनेटली, थैंक गॉड, आई गॉट ए group of scientists, innovative scientists. They're working on functional medicines. And fortunately, I got entry there. They helped me. First, they advised me to reduce my weight. My weight was 95. So now I'm running at 75. And the day I touched 85, then my medicine was stopped, means sugar level was quite normal, BP level was quite normal. So after that, no medicine, no disease, only routine checkups, month after month, or I mean half yearly, I would do it. And after that, many of my friends, relative, they approached me, कैसा किया? होता है, अगर आपका होता है तो लोग पूछते हैं कैसा हुआ। दैट इज अ विजिबल, दिखाई देता है। यू कैन नो कि इस कोई डायबिटिक पेशेंट को देखने से पता चल जाएगा। अगर हेल्दी लोग को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। एंड मेरा वेट भी ऐसा था, तो दे आस्क्ड मी कैसा किया, तो आई स्टार्टेड गाइडिंग देम। देन आई टुक न्यूट्रिशन कोर्स, और उसके बाद मैंने अभी इट इज ए प्रोफेशन। एंड मेरा अभी मेरा मकसद है कि दुनिया में कितने लोगों को अच्छा हेल्दी रख पाए। नॉट ओनली डायबिटीज, बट कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज इज रिवर्सेबल। एंड आज के डेट में कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, अगर आप उसको रोक लगाना चाहते हो, जस्ट टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट या रिवर्स, इट इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड बट सीवियर और ऑर्गन डैमेज ना हो, तब तो अर्ली स्टेज में हो सकता है। सो टुडे इज द डे, वर्ल्ड डायबिटिक्स डे। यू कैन टेक ए ओथ, आज से हमने इसको चालू कर देंगे, तो आगे चल के रेस्ट ऑफ दिस लाइफ विल बी हैप्पियर एंड हेल्थियर, बेस्ट ऑफ लाइफ। सो आपको इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं एक पावर पॉइंट का माध्यम से आपको ले चलूंगा। सो आई नीड योर पेशेंस फुल लिसनिंग। और जिन लोग वीडियो नहीं खोल पाए हैं, सो
वीडियो खोलिए, यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ थिंग्स. So, Hostia, screen is visible. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. I will be sliding off. I will not be talking about diabetes. I will talk about today lifestyle disease and how to prevent it. The major three major factor रहता है lifestyle disease, जिसको बोलते हैं lifestyle disease या non-communicable NCD, non-communicable disease. Reason behind is oxidative stress, chronic inflammation, oxidative stress, chronic inflammation and imbalanced body compositions. ये आपको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब लगेगा ऐसा है, बट बड़ी चीज नहीं है. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इज इजी थिंग, सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा जिसको समझ नहीं आता है. एंड उसका सोल्यूशन है 6 फाउंडेशन पिलर्स फॉर हेल्दी लाइफ. आपका पास आज लाइफस्टाइल डिजीज है या नहीं है, बट ये 6 पिलर्स आप मेंटेन करते हैं या आपका घर में कोई भी हेल्दी है, इस पिलर्स में आप रहते हैं, आगे चल के कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज आपको टच भी नहीं कर पाएगा, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कैंसर. देखिए डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन का पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या बोलता है? ए नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक सेडेंटरी लाइफ, अनहेल्दी डाइट एंड स्ट्रेस, ये आपका रेपिडली इंक्रीजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का रिपोर्ट है. फैक्टर्स में देखा जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिए, आगे चल के इसी पर हम बात करेंगे. सेडेंटरी लाइफ, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस एंड सम मोर थिंग्स ऑल्सो. वही ICMR बोलता है 150% राइज. किस रफ्तार से चल रहा है डायबिटीज का ग्रोथ, मतलब लाइफस्टाइल डिजीज का ग्रोथ चल रहा है किस रफ्तार से इन लास्ट 30 years, 3 decades. एंड ज्यादातर है अर्बन एंड रूरल. ये रूरल की यंगर जनरेशन आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड. 25 से 34 की एज के अंदर उन लोग दे आर मोर अफेक्टेड बाय दैट वे. इंडिया इज द होम टाउन ऑफ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एडल्ट डायबिटीज पॉपुलेशन. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखा जाए, जितना सारे डिजीज है, अब यहाँ पर डायबिटीज को देखेंगे 10 crores, प्री डायबिटीज 13 crores, और बाकी अगर ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी देखेंगे 25 crores ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी 35 crores. ये इसको बड़े ध्यान से देखिए. एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या लाइफस्टाइल का डिजीज पूरी से दिल्ली चल रहा है. वो आप बुलेट ट्रेन लीजिए, कोई भी ट्रेन ले, पूरी से दिल्ली चल रहा है. उस ट्रेन में कुछ कंफर्म रिजर्वेशन हो चुका है जिन लोग का डायबिटीज है, मतलब मान लीजिए 10 millions का 101 millions मीन्स 10 crores. अरे इन लोग का कंफर्म सीट्स है, दे आर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन. आगे मालूम है डायबिटीज का जिनका होता है रिवर्सल बहुत कम होता है, आगे चल के कॉम्प्लिकेशन रहता है और उनका ऑर्गन प्रॉब्लम रहता है. नॉर्मल देखा गया डायबिटीज पेशेंट हार्डली द एंड इज विथ अ डिजीज, नेचुरल डेथ कम होता है उनका एंड फुल लाइफ जी नहीं पाते हैं. उसके बाद जो प्री डायबिटिक है अभी 13.6 crores, 136 million जो बोलते हैं, ये प्री डायबिटीज दे आर ऑन बोर्डेड ऑन द ट्रेन, बट उन लोग का सीट कंफर्मेशन नहीं हुआ. बट सीट बहुत है, बहुत जल्दी कंफर्म हो जाएगा. मेरा कहने का मतलब है जिन लोग का प्री डायबिटिक है उन लोग का ज्यादातर है 95% लोग डायबिटीज को जंप करके चले जाते हैं, क्योंकि कारण है उनका जो लाइफस्टाइल चक्कर से हुआ है और लाइफस्टाइल चेंज हुआ नहीं. अगर जिसने प्री डायबिटिक कंडीशन में लाइफस्टाइल को रिवर्स कर लिया, वो वापस आ गया उस ट्रेन में चढ़ाने. उसके बाद जिन लोग ओवरवेट ओबेसिटी है, जनरल ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, यहां पर दिखाएगा 25 crores प्लस, एब्डोमिनल ओबेसिटी 35 crores, almost 60 crores plus. And these people are preparing their luggage and reserve मतलब बुकिंग. जब आगे चल के वो ट्रेन पकड़ेंगे, सामने वाला आगे जो ट्रेन आएगा, टू रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन इन द ट्रेन, बोर्ड टू द ट्रेन, और इन लोग का सीट कंफर्म भी हो जाएगा. इतना मेरा बोलने का मतलब कितना बड़ा जनरेशन ये डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर, इन सब लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. इन लोग नॉट ओनली डायबिटीज,
डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, बट ये होता है कैसा देखिए, इम्प्रॉपर इम्बैलेंस लाइफस्टाइल से। मेजर फैक्टर इज इम्प्रॉपर इम्बैलेंस लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी डाइट। होता है क्या, पहले गट डिसबायोसिस होता है। गट, फादर ऑफ द मेडिसिन हिपोक्रेट्स बताते हैं ऑल द डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम डायबिटीज, सॉरी गट। एंड उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, दिस थ्री सेक्टर, ये आप ऑक्सीडेटिव इन्फ्लामेशन, एक्युमुलेशन ऑफ फैट, ये तीन को आप मार्क कीजिए। जो पहले ये तीनों आपका मेजर फैक्टर है टू लाइफस्टाइल डिजीज को एक्सेलरेट करने के लिए। उसके बाद हार्मोन इम्बैलेंस होता है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता है, तो चालू हो जाता है डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से लेके ऑटो इम्यून डिजीज, आर्थराइटिस एंड फैटी लिवर, सब चालू होता है। उसके बाद वो लॉन्ग टाइम स्टे करता है, धीरे धीरे क्रोनिक कंडीशन में कैंसर, स्ट्रोक एंड लॉट ऑफ अदर डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ डिजीज। आज का पर्पस क्या है, आपको एजुकेट करना और अवेयर करना है, जो कि हम लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट कर पाएंगे। देखिए, हियर इज अ 10,000, 10,000 मीन्स वन विथ 4 zeros, वट एवर द नंबर मीन्स, यू मे हैव ए बिलियन मिलियन अमाउंट ऑफ रुपीज, बट इफ यू ड्राइव आउट वन, योर हेल्थ, और बाकी कोई काम का नहीं है, किसी का अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो कितना भी पैसा हो ना, वो फैमिली को केयर कर सकते हो, काम में जा सकता है। सो हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन्स हेल्थ इज ग्रेटेस्ट वेल्थ। ऊपर वाला ने एक ही दिया है हमको, हेल्थ एंड माइंड, टू थिंग्स। दोनों चीज हम लोग का दिमाग और बॉडी को ठीक रखने के लिए, और हमारा क्या है, गॉड कैन नॉट, मतलब आपका आज आप अर्जुन बन जाओ, कृष्णा का साथ दोस्ती करो, और यू बिकम ए, एक कोई डॉक्टर को आप जितना अमाउंट ऑफ करोड़ ऑफ अमाउंट दे दो, कुबेर का साथ दोस्ती करो, कोई हॉस्पिटल वर्ल्ड के कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर को बोलो, तो आपको ये लाइफस्टाइल डिजीज से छुटकारा देना मुश्किल है। इसीलिए अगर मतलब अगर आपने हेल्थ का ऊपर वेल्थ हेल्थ को अगर वेल्थ जैसा नहीं लिए हैं, तो आपको कोई बना नहीं सकता, ठीक है। उसमें से क्या होगा, दैट विल सेव योर मनी, मेडिकल एक्सपेंसेस, ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसेस। आज का डेट में कोई हार्ट का सर्जरी होता है तो 5-7 लाख का, 10 लाख का नीचे नहीं होता, उससे ज्यादा भी होता है। और यू लुक फिट एंड स्मार्ट, बोलते हैं ना, यू मे वेयर एनी काइंड ऑफ ड्रेस, एनी कॉस्टली ड्रेस, जितना भी पहन रहे हैं, अगर आपका बॉडी ठीक है, कोई भी क्वालिटी, मतलब कोई भी कंपनी का ड्रेस पहनो, ब्रांड का पहनो, दैट विल सूट्स यू, यू शुड बी योर ओन ब्रांड, राइट ब्रांड। तो व्हेन कोई अगर लाइफस्टाइल डिजीज में सफर करते हैं, उनको पूछिए ना, उनका घर में जो उनका फैमिली मेंबर कितना स्ट्रेस एंड पेन में रहते हैं। जिन लोग आईसीयू में पड़े रहते हैं और बाहर में रहते हैं, डॉक्टर्स आके बताते हैं, जस्ट प्रे टू गॉड, क्या होगा बता नहीं सकते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफस्टाइल इज मुश्किल है। सो आपका एक ही चीज दिमाग के अंदर ले सकते हैं, पूछेंगे लोगों को, पूछेंगे ना भाई कल किसको पता है क्या डिजीज कब आएगा, नो, दैट इज विद इन योर हैंड। एंड आज आप इंफॉर्मेशन का बाद आपको पता चला, यस दैट इज पॉसिबल। देखिए, एक लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन, दो चीज इसके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, ग्रोथ आज पैदा पैदा होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद आता है मेंटेनेंस, उसके बाद डिजेनरेशन, दिस इज ए लाइफ साइकिल, ऐसे ही पैदा होता है ये था। बट हमारा पर्पस क्या है, क्वांटिटी ऑफ द लाइफ, मतलब लाइफ स्पैन को हमको लंबा खींचना है। इंडियन का लाइफ स्टाइल मान लीजिए 69 to 70 ईयर्स लाइफ स्पैन है, बट पीपल आर स्टेइंग मोर देन 100 ईयर्स। बट क्वेश्चन इज नॉट हाउ लॉन्ग वी स्टे, क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मींस व्हाट इज द हेल्थ स्पैन। मतलब विथ ए लाइफ स्पैन विथ एंड अ गुड हेल्थ स्पैन, दैट इज द आप जीता हुआ गेम, मतलब विन इन सिचुएशन में यू आर देयर। लाइफ स्पैन हेल्थ स्पैन में क्या होता है, आज के अगर करंट डिजीज सिचुएशन में ये ग्राफ को देखेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज रेट ऑन पीक, पैथोजन डिजीज जो वायरस और बैक्टीरिया से होता था, दैट इज कंट्रोल्ड। आज का डेट में कोई भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, यू विल फाइंड 90% केसेस आर फ्रॉम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इंक्लूडिंग डायबिटीज ऑल्सो। एंड अगर आप किसी ने अगर उसको 6 पिलर्स को अपनाया, he will have a maintain a good long healthy lifespan. Otherwise जैसे 20-25 साल हो गया, उसके बाद चालू हो जाता है अनहेल्दी लाइफ लिविंग anyway. So we should focus measure on पर्सन ऑफ गुड हेल्थ कंडीशन कैसा रखें। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मिडिल एज चालू होता है, उसके बाद आपका एज एडवांस होता है,
तो दैट इज हेल्दी से अनहेल्दी ग्राफ में चले जाता है। कर्व इज चेंजिंग, मतलब होना चाहिए आपका व्हाट एवर दी एज में भी, बट इट शुड बी। ओल्ड एज बीमारी ऐसा कुछ नहीं है आजकल, मतलब वो नहीं है, इफ यू नो हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ। There are many common conditions of 60 adult more than 60 years जिन लोग का रहता है, कैंसर, जीआई ट्रबल से रहता है, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, नेक एंड बैक प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, विजन लॉस, कैटरैक्ट, स्किन प्रॉब्लम, लॉ मेनी काइंड ऑफ डिजीज ओल्ड एज केस में रहता है। मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ, मतलब जो 60+ में उनका साथ ना मेडिसिन मेडिसिन उसका साथ कुछ प्रेस्क्रिप्शन और रेगुलर चेकअप ये रहता है। एंड why talk about this old age? अभी यंगर जनरेशन को देखिए ना, दे आर नॉट मतलब स्पेयर फ्रॉम डिजीज लाइक कैंसर ऑल्सो। युवाओं का चौपट में कोलन का कैंसर देखिए। अच्छा, जैसे हम बता रहे थे, जो 3 फैक्टर्स के बारे में बता रहे थे, पहला होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जो फ्री रेडिकल, आप सीधा ले लीजिए, आपका लोहे में जंग लगना जैसा है, आपका सेल में वही चीज हो जाता है। और एक आपको ये एप्पल काट देते हैं, एप्पल काटने का बाद वो कुछ टाइम का बाद विद इन सम मिनट्स इट विल गेट ब्राउन, ऊपर का देखेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल। एंड एंटीऑक्सीडेंट क्या है? आपके अंदर में कुछ बॉडी केमिकल्स है जो कि उसको काउंटर कर सकता है। उसका इम्बैलेंस हुआ मतलब आपका बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट उतना प्रोडक्शन नहीं है, या आप उतना एंटीऑक्सीडेंट खाने में नहीं ले रहे, उसी कारण से फ्री रेडिकल कॉन्स्टेंटली आते रहेगा, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन से लेके। देयर आर सो मेनी रीजंस। होता क्या, देखिए एक टमाटर जैसे एग्जांपल लिया, एक नॉर्मल सेल, जैसे ही फ्री रेडिकल अटैक हो जाता है, वो मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, मतलब द सेल प्रॉब्लम चालू हो जाता है, एंड सेल विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यहां पर देखिए एप्पल का जो एग्जांपल देता है, सेम थिंग, फ्री फ्री रेडिकल डैमेज होता है तो एप्पल खराब हो जाता है। ये कॉजेस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? आप अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं, तो दैट स्टिमुलेट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मतलब आप जो दूसरा रीजन है, ये सब सिमिलर क्या क्या अगर आपने ओवरवेट ओबेसिटी है, दैट इज द कॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव, पुअर डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल और टोबैको, पान गुटखा ये च्यू कर रहे हैं, तो वहां से भी आएगा। एंड सर्टन काइंड ऑफ मेडिसिन आप लेते हैं तो टॉक्सिन, एयर पोल्यूशन वहां से लेता है, और कोई एक्सपोजर से रेडिएशन आता है उस वहां से भी आता है। इवन इफ यू डू मोर एक्सरसाइज, वहां से भी आता है। इफ यू आर मोर इन मेंटल स्ट्रेन, वहां से भी हो सकता है। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, आर्टरी में आपका प्लेग डिपोजिट होता है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, किडनी डिमेंशिया, मेंटल प्रॉब्लम जो होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, इवन सीओपीडी जैसा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लॉट ऑफ डिजीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज में आता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। एंड हम लोग को व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पता चल गया, एंड क्या होता है। अभी आते हैं ये कैसे होता है। देखिए सिंपल, जैसे ही एप्पल, ये दिस इज अ ग्रीन एप्पल, एप्पल को काट देते हैं, ब्राउन हो गया, तो इसका मतलब कलर, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। आप उसके ऊपर एक नींबू छिड़क दीजिए, बस अगेन इट इज बैक टू नॉर्मल। एंड क्या एंटीऑक्सीडेंट्स उसको करेक्शन किया। वैसे ही हम लोग का बॉडी को, सेल को हम कर सकते हैं। देखिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन सी जैसे एप्पल में है, विटामिन सी, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोएंजाइम Q10, ग्रीन टी, एंड कुरकुमिन आपका जो हल्दी है, फ्लेवोनॉइड है, विटामिन ए होता है, जो बीटा कैरोटीन होता है, ये सब आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा आपको। साथ में आप बैलेंस डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे, एंड लिमिट इनटेक ऑफ पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। सिंपल कार्ब लेना है, नॉट सिंपल कार्ब नहीं, एंड फैट्स, मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक्सरसाइज रेगुलरली, एंड क्विटिंग स्मोकिंग एंड क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको, रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, अवॉइड रिड्यूस एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड हार्श केमिकल्स, एंड नॉर्मल बॉडी वेट एंड बॉडी कंपोजिशन को मेंटेन करेंगे, तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है हम इन्फ्लामेशन, सेकेंड पॉइंट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बता दिए। और इन्फ्लामेशन क्या होता है? सूजन, आपका थोड़ा सा कहाँ चोट लग गया, रेड स्वेलिंग हो गया, दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। बट सम
क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो लंबा टाइम तक रहता है, दैट्स डैमेज्ड। क्या करता है? हेल्दी सेल को डैमेज करता है, हेल्दी टिश्यू को डैमेज करता है, हेल्दी ऑर्गन को डैमेज करता है। उसमें क्या है? इन्फ्लामेशन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। और आपका बॉडी का डिफेंस बन रहा है तो इम्यूनी सिस्टम को भी डिफेंस करता है। किस कारण से ये होता है? टिश्यू डैमेज से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से आता है, एंड एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन से आता है, एजिंग प्रोसेस में होता है, क्रोनिक स्ट्रेस से आता है। व्हाट यू ईट सच एज रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, कमर्शियली बैग्ड फूड्स एंड फूड इन हाई शुगर, इस सारे चीज से होता है। मतलब आप लोग का फास्ट फूड एंड प्रोसेस फूड जो होता है उसे, उसमें डिजीज क्या होता है? लॉट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड pulmonary disease, many more lifestyle diseases, Alzheimer's, pancreatitis, renal fail diseases like this। ये सेम थिंग जो आपको बताया वही चीज है। अभी आते हैं प्रेडिक्टर ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब आपका जो बॉडी कंपोजिशन के ऊपर आता है। बॉडी कंपोजिशन का पहला मार्क, इट इज नॉट दिस होल एंड सोल, पहला मार्क होता है बॉडी कंपोजिशन। What is your, if you are normal, as per Indian standard, if you are 23 BMI means 22.9 के अंदर है, you are normal। And आप देखेंगे यूरोपियन BMI 25 is normal for them। Why 23? Because Indians artery are very narrow। That is why। ओवरवेट ओबेसिटी आप देख, आपको पता होना चाहिए इन व्हिच BMI आई एम देयर। अगर 23 से ऊपर है, यू शुड फर्स्ट आपका काम होगा इसको रिड्यूस करना है, व्हाट एवर द लाइफस्टाइल आपका डिजीज है, और दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। ओवरवेट ओबेसिटी, देखिए ओवरवेट ओबेसिटी मतलब जैसे आपका 25 प्लस BMI में जाते हैं वहां से, बिकॉज ऑफ रीजन क्या है? आपका हाई कैलोरी डाइट में लो इन न्यूट्रिशन रहते हैं, और आपका लॉट ऑफ अदर थिंग्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये सारे लाइफस्टाइल डिजीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये सब आपको अफेक्ट करना चालू करता है। जिन लोग को हुआ है, अब बोलेंगे कोई बोलेगा मैं 5 साल से मेरा वैसे वेट चल रहा है, 10 साल से वैसे वेट चल रहा है, नहीं हुआ है तो आगे चल के आएगा ही, कभी आता है उन लोग को। यू कैन आस्क एनी डॉक्टर, उसका लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, होता है। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ बॉडी कंपोजिशन। समबडीज बॉडी कंपोजिशन इज एक तीनों है आदमी ले लीजिए, इनका एज 30 है, हाइट सेम है, वेट सेम है, BMI सेम है, BMI 22 है। इट इज BMI 22 सपोज टू बी हेल्दी। यहाँ पर क्या है? द पर्सन इन द मिडल, हिज एज इज 25, उसका BMI इज 22, बट उसका बॉडी फैट परसेंटेज इज 15। बट एक्सट्रीम राइट में जो है उनका एज इज 35, इनका बॉडी फैट परसेंटेज 31। बिकॉज ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, एक्स्ट्रा फैट जो है, एक्स्ट्रा वेट जो है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज एजिंग, ही इज मोर क्लोज टुवर्ड्स डिपार्चर। उसीलिए आपका फैट इज आपका डिटरमिनिंग फैक्टर ऑफ योर फ्यूचर हेल्थ। इसीलिए आपका फैट चार्ट में देखना चाहिए आपका 17 से मैक्सिमम 25 के अंदर होना चाहिए, एंड वुमेन 16 से लेके 33% आपका एज वाइज देख लेना चाहिए कितना है। आपको जो बुलाए उनके साथ रहिए, आपका ये कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं, उनके पास मशीन है, निकाल सकते हैं। एंड मसल भी, मसल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हर साल आपको, एवरी ईयर यू लूज 1 to 2% मसल्स। मसल आफ्टर 30 आपका ग्रो बहुत कम करता है, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। इसलिए व्हाट इज योर मसल परसेंटेज, यू शुड नो। जितना आपका मसल परसेंटेज बेटर रहेगा, उतना आपका बोन ठीक रहेगा, इंटरमस्कुलर हेल्थ अच्छा रहेगा, बोन स्ट्रांग रहेगा, एंड योर मोबिलिटी एंड्योरेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसीलिए आपका बॉडी कंपोजिशन, BMI का बाद आपका BMI के अंदर देखेंगे बॉडी फैट देखिए, बॉडी मसल देखिए। अभी क्या है आपका विसरल फैट, पेट के अंदर अंदर का जो फैट है वो कितना है? इट शुड बी लेस देन 9। नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस आपको देखना पड़ेगा, मेन 35 cm से नीचे होना चाहिए, वुमेन 31 cm से। वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना पड़ेगा, हिप एंड वेस्ट रेशियो भी देखना पड़ेगा। ये सारे बॉडी कंपोजिशन के अंदर जाता है। ये सारे चीज आपको नॉर्मल लेवल में आ जाएगा तो ठीक है। जैसे आपको विसरल फैट बोलता है तो लेस देन 9 इज गुड। बहुत सारे लोगों को देखिएगा थिन आउटसाइड बट फैट इनसाइड, मींस पतला दिखते हैं, पर आप बोलेंगे इनका तो बीमारी होना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोग का लाइफस्टाइल डिजीज होता है। क्यों? अंदर में विसरल फैट इज द कल्प्रिट। उसीलिए आपका हाइट के हिसाब से
आपका पेट का साइज हाफ से लेस होना चाहिए, ये मोटा मोटी हिसाब। आज आप उसको खुद ही उसको रेशियो देख लीजिएगा। अगर आपने लेस फेट और मोर मसल रहता है, यू हैव ए गुड मेटाबॉलिज्म, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, इंसुलिन सेंसिटिव अच्छा रहेगा, एंड योर लाइफस्टाइल डिजीज से आप मुक्त होकर रहेंगे। इसीलिए उसका ऊपर काम करना चाहिए। मसल मसल गेन करने के लिए नॉट नेसेसरी दैट आप जिम जाएंगे, आप भी घर में बैठ के कर सकते हैं, एंड आवर कोचेस एंड ट्रेनर्स आपको बता सकते हैं, एंड बड़ा सिंपल चीज है। एंड वी एवरी संडे 6:30 को हम एक मॉर्निंग क्लास करते हैं, वहां पर हम लोग योगा एक्सपर्ट होते हैं, एक्सरसाइज एक्सपर्ट होते हैं, वो भी बताते हैं वे टू लिव ए हेल्थियर लाइफ कैसा करेंगे। देखिए, पहला चीज होता है आपका माइंड सेट करना, फोकस इनसाइड, आपकी अंदर में चीज क्या देखना चाहिए, क्या चीज चल रहा है। मतलब ये सब आप जैसे टेस्ट कर लेंगे, आप देख लेंगे मेरा अंदर का क्या चीज है, क्या बिगड़ा हुआ है, क्या ठीक है, एंड फोकस ऑन द कॉज, क्यों हो रहा है। वो आपको जो आपका हेल्थ कोच है आपको मदद करेंगे। देन एक चीज देखिए, एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। कुछ भी हो रहा है आपका, अगर पैरामीटर डिफिकल्टीज है बिकॉज ऑफ सम इफेक्ट। अच्छा, अभी है, मैं एग्जांपल लेता हूं एक लीव, मतलब ब्लू जोन का। Blue zone people, they live more than 100 years. They don't have any kind of lifestyle disease because the lifestyle is great. And we blue zone culture में वही 6 pillars वो करते हैं। They don't have a heart disease, cancer, Alzheimer's, diabetes नहीं है। But there even doctors are not that rich there. Patient ही कम है वहां पर, हॉस्पिटल कम है, मेडिसिन शॉप्स कम है यहाँ पर। ओकिनावा जापान, सर्डिना इटाली, इकारिया ग्रीस, निकोया कोस्टारिका, लोमा लिंडा यूएसए, ये सारे छोटे छोटे एरिया 1-2 लाख का रहता है। एंड दे लिव हैप्पी लाइफ। सी 100+ years लेडी कुकिंग ऑफ हर ओन, उनको कोई सहारा नहीं चाहिए। 95 years अपना गार्डनिंग करते हैं। 6 pillars ऑफ हेल्दी लाइफ, आपका स्लीप 7 to 8 hours होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन 20 kg में 1 लीटर होना चाहिए वाटर। और वाटर आप कैसे, वाटर को मतलब चबा चबा के आप खाएंगे, आपको हंसी लगेगा, लेकिन वो पीने का स्टाइल कुछ है। कैसा वाटर लेंगे, किस टाइम पर लेंगे, कितना लेंगे, दैट इज ऑल्सो पता होना चाहिए। वो हमारा हेल्थ कोचेस आपको गाइड करेंगे। प्लस डाइट, कैसा डाइट, व्हाट डाइट कैसा लेते हैं, क्या लेते हैं, किस टाइम पर लेते हैं, कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, बहुत सारी चीज उसके अंदर है। एंड हम एक्सरसाइज कैसा करना चाहिए, आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, एंड कौन सा सप्लीमेंट आपका डेफिशिएंसी वो भी पता होना चाहिए। एंड आपको स्ट्रेस मैनेज करने का रास्ता मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज आपको हमारा हेल्थ कोचेस आपको बता पाएंगे। 6 pillars आपको मेंटेन करेंगे। व्हाट यू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट। आपका मील प्लेट होना चाहिए 50/50, 25/25। 50 होना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 25 कार्बोहाइड्रेट, 25 इज प्रोटीन्स होना चाहिए। इसको आप अगर आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इज द की, आपको इसके अंदर आपका फेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ऑल मिक्स टुगेदर हो सकता है। मैं आपको एक डाइट के ऊपर एक सिर्फ एक सैंपल देता हूँ। जिन लोग लॉन्गर टेलीमर रहते हैं ना, उन लोग का डीएनए अच्छा रहता है, मेडिटेरियन डाइट लेते हैं ज्यादातर है, वो टमाटोस लेते हैं, कुछ ऑलिव ऑलिव ऑयल लेते हैं, एंड कुछ प्लांट कंपाउंड लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे। सो उसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव ए शिफ्ट द फूड पैटर्न आपका। रिफाइंड फूड से होल ग्रेन को जाएंगे, एंड अनहेल्दी फैट से आप हेल्दी फैट में जाएंगे, पैक्ड एंड प्रोसेस फूड से छोड़ के होमली फूड में जाएंगे, कैलोरी डेंस फूड छोड़ के आपका विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन डेंस फूड में जाएंगे, एंड फूड इन लो न्यूट्रिएंट को आप अवॉइड करेंगे। उल्टा हो जाता है। एंड ब्लू जोन लाइफ में वो 6 कल्चर रहता है, एंड हमारा पर्पस है जो ब्लू जोन कम्युनिटी के अंदर आना है। वी हैव ए कम्युनिटी दैट इज लाइक जस्ट लाइक ब्लू जोन कम्युनिटी। ये यहाँ पर आता है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा। वो इंटरनेशनल मेडिसिन में वो आपको बताते हैं आपका जामा में। इफ यू मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, यू हैव ए वेरी गुड लाइफस्टाइल। प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज के लिए आपका हेल्दी ईटिंग ये चलता है। यहाँ पर आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस बताते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हाँ, और एक चीज से नया चीज मैं बोलता हूँ, इट इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इज ए मिरेकल ऑफ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। आपका ऑटो खुद
आपकी जो डैमेज सेल आपका बॉडी उसको दैट ईट अवे योर डैमेज सेल्स। ये आपका बॉडी का सेल है। व्हाट इज ऑटोफेज? ऑटोफेज इज अ सेलुलर प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल्स ओल्ड डैमेज एंड एबनॉर्मल पार्ट्स ऑफ योर सेल। खुद ही आपका वहां पर हीलिंग प्रोसेस या रिसाइकलिंग प्रोसेस होते रहता है। एंड इसके ऊपर बहुत सारे चीज है, आप उसके ऊपर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट ऑटोफेजी में क्या होगा, आपका हेल्थ विल बी गुड एंड दैट विल, आपका कंडीशन लाइक कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर, जितने लाइफस्टाइल डिजीज में वो आपको मदद करेगा ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के को जाने के लिए आपको सर्काडियन रिदम को मेंटेन करना चाहिए। सर्काडियन रिदम अर्थ क्लॉक का साथ बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना चाहिए। जैसे सर्काडियन रिदम में बोला जाता है, इंसुलिन सवेरे 6 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक इंसुलिन सिक्रेशन अच्छा रहता है, एंड नून टाइम में इंसुलिन सिक्रेशन पीक रहता है। सो रात को अगर शाम को 6 बजे के बाद कोई खाना खाते हैं, उसके बाद उसका इंसुलिन सिक्रेशन तो नहीं होता, जो फूड रहता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। रात को 10 बजे के बाद आपका बाउल बाउल मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। सो इसीलिए ज्यादातर हमारा एंशियंट चाइनीज एंड गुड हेल्थ को पर्सन्स दे डोंट ईट आफ्टर सनसेट नॉर्मली। दैट्स ए गुड। मैंने बहुत सारे हमारा जो क्लाइंट्स हैं उन लोग को अर्ली डिनर करने के बाद उन लोग का हेल्थ में लॉट ऑफ चेंजेस आई हैव सीन इट। दैट इज ऑफ ऑटोफेजी। उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखिए शाम को 6 बजे खा लिए, सवेरे 8 बजे अगर आप अगेन यू आर टेकिंग, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड आपके अंदर में सेल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जाएगा। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन फूड लेंगे आप। जापानीज कल्चर जो जो ब्लू जोन में रहते हैं उन लोग को हारा हाचिबू, ओकिनावा आइलैंड में एक डायलॉग है, जापानीज डायलॉग है, हारा हाचिबू, ईट अप टू 80% एंड 20% छोड़ दीजिए। ड्रिंक वाटर आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर। एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और कीप ए मूव फॉर द होल डे। एंड जो जितने आपका फ्रूट्स वेजिटेबल लेंगे, टेक डिफरेंट कलर्स, जहां पर आपको पॉलीफेनोल प्लांट कंपाउंड मिल जाएगा। जो प्लांट पॉलीफेनोल प्लांट कंपाउंड, ये आपका कैंसर, हार्ट, डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करता है। सो यू शुड मेंटेन 6 pillars, अगेन आई रिपीट: स्ट्रेस, स्लीप, हाइड्रेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड सप्लीमेंटेशन। फर्स्ट स्टार्टिंग इज योर गॉट हेल्थ। गॉट हेल्थ से आप स्टार्ट करेंगे। एंड आप यहाँ पर हम लोग के एक होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग काम करते हैं, जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा जो बोलते हैं बोर्ड, एंड दिस इज ए कम्युनिटी। एंड आपको अगर मेडिकल एडवाइस ट्रीटमेंट है, यू कैन चेक विथ योर ओन मेडिकल डॉक्टर, और वी कैन सजेस्ट यू डॉक्टर्स। यहाँ पर हेल्थ कोचेस है, योर ड्रिंक एंड स्मूदीज कैसा रहेगा, डाइट कैसा रहेगा, बॉडी के ऊपर आपका एक्सरसाइज वर्कआउट कैसा करेंगे, माइंड के ऊपर कैसे मेडिटेशन करेंगे, न्यूट्रिशन क्या जरूरत है, या क्या कम्युनिटी में आप रहेंगे, तो ये बहुत जल्दी धीरे 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 ये हो जाएगा। सो आपको जो इनवाइट किए हैं उनके साथ आप टच में रहिए, आज उनको फोन करके बताइए आप इफ वांट टू रिवर्स योर हेल्थ कंडीशन, तो वो आपको मदद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग, एंड बैक टू आवर ऑसम होस्ट सुनील जी। Wow, really, Dilip ji, it was so wonderful, so nice presentation with a short span of time. मैं जैसे पहले आपको क्लियर किया था कि यहाँ जो जो स्पीकर आएंगे ना, वो अपने में खुद का एक्सपीरियंस से ये शेयर करेंगे। 95 kgs विथ एडिशनल डायबिटिक एंड बीपी, आज 75 kg, कोई भी डिजीज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, उनका उम्र भी आपको कंफ्यूज हो जाएगी आप जान के। फिर भी उन्होंने इतना सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए और डायबिटिक रिवर्सल एंड प्रिवेंशन के लिए। आपके लिए एक जोरदार जबरदस्त ताली होना है दोस्तों। एक युद्ध अपना विरुद्ध, एक युद्ध अपना विरुद्ध। लोगों को लगता है कि डायबिटिक एक बार पुराना हो जाए तो जैसे एक एक माइल माइल पिलार के जैसे एक एक डिजीज ऐड करके करके आगे आगे चलते हैं। लेकिन हमारा साथ एक ऐसे शख्स है जिनका डायबिटिक में भी वो एग्जैक्टली ईयर्स बताएंगे, बट इट विल बी मोर देन 20 ईयर्स। लेकिन वो डायबिटिक बिल्कुल कंट्रोल में है उनका, अभी तक उनका कुछ भी नहीं कर पाया है, और बाकी सारे बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। वो भी एक हेल्थ कोच है, रेगुलर बेसिस में
वो एक्सरसाइज करते हैं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं, खाली डायबिटिक नहीं, डिफरेंट अपना आपको हेल्दी रखने के लिए। तो अभी क्या चाहिए? आप लोगों का मदद चाहिए, तालियों के साथ। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर सुजन बिस्वाल। सुजन भाई, नाउ द स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू। Yes, Sujan bhai, please unmute yourself. Dilip bhai, please give the permission. Yes, Sujan ji, you can open. Thank you very much for allowing. So, good evening, everyone. Myself, Sujan Biswal, as rightly host told, कि ये जो आज इतना अच्छी बात सुने आपने, मैंने भी कई साल पहले सुन रहा हूँ, जिसको मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, जिसको करते हुए वो गुड हैबिट्स। आज मेरे बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, अच्छा जीना, लाइफ को एंजॉय करना, ये हर कोई चाहता है। कितने लोग चाहते हैं? डायबिटिक, कोई भी डिजीज हो, कुछ भी हो, वो तो कुछ लोग बोलते पार्ट ऑफ लाइफ, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, हाउ मेनी पीपल वांट्स टू लिव देयर लाइफ फुलेस्ट, जैसे अपना तरीके से जीना चाहते हैं। अगर आप एक बार डॉक्टर जब तक बोलने लगे ये करो वो मत करो, दैट मीन्स दैट इज नॉट ए वाइज टाइम, अब वाइज डिसीजन नहीं है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये डायबिटीज की बात करूँ, कि मेरे जो फैमिली हिस्ट्री है, मेरे फादर वाज डायबिटिक, एंड बहुत सा ऑलमोस्ट 40-45 ईयर डायबिटिक के बाद उन्होंने 80+ ईयर्स में गए। मेरे चाचा, मेरे बुआ, माय siblings, they all are diabetic, right? And they all are taking medicines. And so as to me, मैं भी कहाँ से निकल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बैक मेरे भी एलिवेटेड ब्लड शुगर रिपोर्ट हुआ। जैसे आज यूजुअल फादर जी को दिखा रहा था, मैंने भी दिखाया। एंड तब से फिर ऑलमोस्ट 2001 से मेरे को कुछ मेडिसिन दिए, एंड उसको मैं कंटिन्यू कर रहा था। तो बाद में समझ में आया कि योर बॉडी, योर हेल्थ, तो मेरा जो हेल्थ है, मतलब ये इज द अल्टीमेट स्टेटस ऑफ माय सिंबल। जब तक नहीं मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, कब तक? जब तक मैं सुस्त हूँ, मेरे फैमिली, मेरे एवरीबॉडी इज हैप्पी, आई एम एंजॉयिंग विद एवरीवन, आई एम होपफुल ऑफ एवरीथिंग, जब तक मैं हेल्दी हूँ। तो मैंने कहा वो सर लोग क्या कर रहे हैं, सबका पास एक बॉक्स है, मेडिसिन बॉक्स है, आपको पता होगा, सबका घर में होता है, नहीं? आज बीपी का मेडिसिन लो, कल ये थायराइड का लो, परसों ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का लो, परसों नहीं, रोजाना कर दीजिए। तो मैंने कहा अगर मेरे उसको कुछ नहीं कर, मेरे साथ भी कोई होने वाला है। तो उसको मैंने जल्दी समझ गया। कुछ जैसे आज दिलीप जी से आपने सुना, उनसे कई सारे हेल्थ कोच, कुछ डाइटिशियन, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट, कुछ आपका साइंटिस्ट, उनसे मैंने देखा और कुछ हैबिट मैंने डेवलप किया। आज मेरे साथ स्थिति ये है कि मैं बताऊँ, देखिए डायबिटीज जैसे पता है ना, एक डिजॉर्डर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे स्लो प्रोसेस, कब आपको एक्यूट बन जाए, कब आपको सीरियस बना देता है, लोगों को पता नहीं। पहले पहले आपका स्किन पे, आपका विजन पे, आपका बहुत सारे organ पे आपको अफेक्ट करता है। बीपी बोलते ना, ये डायबिटिक अगर हो गया तो चचरा भाई आ जाता है ब्लड प्रेशर। लेकिन आज मेरे साथ ये है, मैं ओनली जो एक प्रिलिमिनरी मेडिसिन, एक मेटफॉर्मिन दे रहा था 2001 में, आई एम लीडिंग माई दैट नॉर्मल लाइफ। मेरे को जो भी हमारे घर में खाना बनता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे चीज स्वीट्स वगैरह खाता हूँ, नहीं, आई एम लीडिंग माई लाइफ विथ गुड हैबिट, विथ ए डिसिप्लिन माइंड, विथ गुड फूड डाइट, एक्सरसाइज एंड सम हर्बल प्रोडक्ट्स, जिसके साथ आज मेरे साथ आई एंजॉय। ऑफ कोर्स माई वाइफ, जो कि मेरा डाइट का बिल्कुल प्लानिंग करता है, right? घर में जो खाना, तो ये सारी चीजें वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, एक जैसे जो 6 पिलर अभी बताए ना दिलीप जी ने, उसको मैं कंप्लीटली ओडिया कौन ना, हाड़े हाड़े, तो उसको मैं उसको करता हूँ डेली। जैसे बताया घोष जी ने, एक्सरसाइज करना, बीटिंग माई एज, मैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स, यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स से जानते हैं, मेरे को जो
और सवेरे जुटते हैं मेरे साथ, एक डेली एक्सरसाइज करता हूँ। एंड जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ, जैसे पता है ना, मॉर्निंग इवनिंग 6:30 मैक्सिमम 7 PM इज माई कट ऑफ टाइम फॉर डिनर। एंड अगर ये गुड हैबिट्स आप डेवलप करते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। यू कैन लिव योर लाइफ जैसे आप चाहते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बैक टू मिस्टर सौरभ रंजन दास। और वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त था आपका। खुद का एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, ये पूरा दिल से था। दोस्तों, अभी भी क्या लगता है आपको कि डायबिटिक रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल? जरूर लगता होगा, किसी किसी को लगता होगा, क्योंकि ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इनप्रिंट हो गया है कि डायबिटिक रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। आज में बहुत सारे डॉक्टर्स है जो कि खुद को डायबिटोलॉजी बोलते हैं, उन्होंने भी बोलते हैं, सबको एड्रेस भी करते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया आपका तो सारा जिंदगी मेडिसिन खा के रहना पड़ेगा। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा रुकिए। अभी हमारा पास एक ऐसा लेडी है जिन्होंने कुछ कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ओवरवेट भी था उनको, और हाई डायबिटीज था, बिल्कुल हाई। अनहेल्दी थे, उनका जुबान से सुनेंगे आज की कहानी मिसेस हेमा मंजरी बेहरा की जुबान में। नाउ द स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू सूर्य भाई। सबको हरिओम। माई सेल्फ हेमा मंजरी बेहरा, वाइफ ऑफ नाइस पर्सनालिटी नित्यानंद बेहरा, मदर ऑफ 2 लव सन। कोविड समय में मेरा शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया था। मेरा HbA1c 7-8 ऐसे रहता था हमेशा। मेरा वेट था 75 kg था। इसके बारे में मेरा अवेयरनेस नहीं था। माई मदर को शुगर हो गया था, इसके शुगर लेवल बढ़ गया था, डायबिटीज हो गया, पहले डायबिटीज हो गया था। इसके बाद मेरा मदर को 50 ईयर एज में मुझे लॉस करना पड़ा। उनका ऑपरेशन भी हुआ था। मैं घर का बड़ा लड़की हूँ, मैंने सिचुएशन देखा। और सब मैं सोचती, मदर के बारे में सोच के मुझे भी थोड़ा डर लगता है, इससे कैसे मैं छुटकारा पा सकती हूँ, ऐसे में से कैसे छुटकारा ले सकती हूँ। इसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ। और मेरा हस्बैंड मेरा पास में बैठा है, उसने एक कम्युनिटी के साथ अटैच किया। उस कम्युनिटी में पर्सनलाइजेशन न्यूट्रिशन मुझे मिला। पर्सनल न्यूट्रिशन, मेरा जो पर्सनल न्यूट्रिशन है, डॉक्टर प्रत्यय मिश्र और दिल्ली मिश्र, और मुझे पर्सनल हैंड होल्डिंग किए। और मुझे 6 पिलर के बारे में बोले। और इस जो 6 पिलर के बारे में मुझे बोले, वो 6 पिलर में डेली रेगुलर बेसिस में मेरे लाइफस्टाइल के अंदर ऐड किया। इसके साथ मुझे ये सारा चीज मुझे बेनिफिट हुआ। आज का दिन में मैं मेडिसिन फ्री हूँ। मेडिसिन 7-8 मंथ्स हो गया, मैं शुगर मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मेरा HbA1 5 ऐसे ही रहता है हमेशा। मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ, मेरा पास ग्लूकोमीटर है। मैं हमेशा एक सप्ताह के अंदर, एक महीना के अंदर वो HbA1c में टेस्ट करता हूँ, तो 3 महीने के अंदर टेस्ट करता हूँ। मेरा जब मैं इस जर्नी स्टार्ट किया था, मेरा वेट 75 kg था। अभी का मेरा वेट 57 kg है। आज का दिन में मैं डिजीज फ्री हूँ। आज का दिन में कोई मेडिसिन नहीं हो, कुछ नहीं। बिंदास रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। यही सारा चीज ही लोगों के साथ मैं खुद आज के दिन में तो खुद हेल्दी हूँ, और लोगों को इंस्पायर करती हूँ हेल्दी रखने के लिए। वही चीज जितना भी मेरा पर्सनलाइजर हेलो कोच है, इसको न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, जितना भी उनको थैंक्स करो उतना ही कम होगा। थैंक यू। बैक टू सूर्य भाई। दोस्तों, माना कि किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन आपका मेहनत सबको चौंका दिया। मैडम, आपके लिए एक जोरदार जबरदस्त ताली होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए महान बनना जरूरी नहीं है,
लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना पड़ेगा। ऐसे हमारा साथ एक रिटायर्ड बैंकर है। रिटायर्ड करने के बाद क्या होता है, मैं जानता हूं हजारों बैंकर को रिटायर्ड करने के बाद मेडिसिन आड़ होता जाता रहता है और डिजीज भी आड़ होता जाता रहता है। लेकिन हमारा पास एक यंग रिटायर्ड ऑफिसर है, बैंकर है, जो भी कभी शायद मुझे जितना मालूम है सालों से कभी मेडिसिन डॉक्टर तक गए नहीं है। तो इथ योर हेल्प, ये ऐसे नहीं आएंगे। आप अगर ताली नहीं मारेंगे ना, उनका मेरे साथ एक कंडीशन है, अगर ताली नहीं लगाएंगे ना तो कभी नहीं आएंगे। आपके लिए मैं जोरदार ताली देता हूँ। विथ योर हेल्प लेट मी इनवाइट माय बेस्ट फ्रेंड, माय एल्डर ब्रदर श्याम सुंदर नायक। श्याम भाई प्लीज। जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। थैंक यू सुनील भाई। सुनील भाई जैसे बताए, ठीक है, ये बात सही है कि मैं बहुत दिन मतलब 4-5 साल में मेडिसिन कभी लिया भी नहीं, और मेडिसिन को मैं लाइक नहीं करता, क्योंकि मैं खुद का जीवन जीना चाहता हूँ। इसीलिए मैं मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। खुद का जीवन डिपेंड करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना पीने के ऊपर नजर देना पड़ेगा, और हमको हंसना चाहिए, और हमको जो 6 पिलर है इसके ऊपर हमको नजर देना चाहिए। पहले पहले इसके ऊपर इतना मेरा नॉलेज भी नहीं था। कर रहा था मैं, जब कॉलेज में था, बाद में जब नौकरी आया उस टाइम मैंने एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन मैं इतना डिसिप्लिन नहीं था। हाँ, एक्सरसाइज करना चाहिए, कर लेता, लेकिन इतना डिसिप्लिन हुए में मैं नहीं करता। लेकिन बाद में मुझे जब समझ में आया, मैं जब दिलीप भाई के साथ संस्पर्श में आया, तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि लाइफ में डिसिप्लिन क्या होता है, और वही डिसिप्लिन मुझे इसे बना दिया। क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज, योगा, ये दोनों करता हूँ, और उसके चलते मेरे बहुत सारी दोस्त को मैं हेल्प करता हूँ कैसे योगा किया जाए और कैसे एक्सरसाइज किया जाए। और ये एक्सरसाइज करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ता था कि रात 11-12 बजे, जितना बजे मैं जाग सकता था जागता था, और जब मन करता था उस वक्त मैं सो जाता था। लेकिन मुझे रूटीन बनाना पड़ा 10,000 रुपए की ले कि मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। ये कड़े हैं तो इसीलिए मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है ना, मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि कम से कम मुझे तो 7 घंटा सोना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 10 बजे चुना, और अभी 6 घंटा में सोता हूँ, 4 बजे में उठ जाता हूँ। 5 बजे बस, 4 से 5 बजे में 1 आवर मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद 5 से 6 बजे तक मैं घर का मेरा थोड़ा जो पर्सनल काम उसको करता हूँ। 6 बजे मैं पार्क में चला जाता हूँ। 6 से 7 बजे एक्सरसाइज, 7 से 8 बजे योगा। और मेरे साथ बहुत सारी जितने सारी दोस्त हैं वो भी उसको ही करते हैं। खाना पीने का मुझे कुछ ये भी नहीं था। मैं एक बोरासियस ईटर था। किसको मालूम नहीं होता तो कम से कम 21 पीसेस रोटी में खा लेता। पहले पहले तो 1 किलो 1.5 किलो ऐसे मटन भी मैं खाता था। मेरा बहुत सारी, दिलीप भाई इधर है, उन्होंने भी देखा है। हाँ, उन्होंने देखा है। तो लेकिन खाना पीने के ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, लास्ट 20 साल हो गया मैंने नॉन वेज छोड़ दिया। अभी सिर्फ वेज हूँ। वेज मतलब मैं अभी डिसीजन ले चुका हूं कि आगे जाके मैं कार्बोहाइड्रेट छोड़ दूंगा, और सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेके मैं खाऊंगा। क्योंकि अभी 50-70% मेरा जो प्लेट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भरा हुआ है। दिलीप भाई के साथ बात हो रहा था, दिलीप भाई बोले कि सुबह से थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लो, क्योंकि सुबह में जब लेता हूँ ना, मैं सिर्फ फ्रूट्स एंड नट्स ये सब चीज लेता हूँ। उसको भी, ये खाना पीना भी मेरा चेंज हो गया। रात में तो मैं कम से कम 6-7 पीसेस रोटी लेता था। अभी तो 1-2 पीस मैंने दिलीप भाई के संस्पर्श में आने के बाद भूख अगर नहीं लगे तो मैं कभी नहीं खाता हूँ। और महीने में 1-2 बार मैं फास्टिंग भी मैं कर लेता हूँ। ये मेरा है रूटीन। स्ट्रेस टेंशन के बाद छोड़ दीजिए। स्ट्रेस टेंशन तो मैं कभी लेता भी नहीं। अगर मेरा एज आप देखेंगे, सुनील भाई जैसे बताए कि मैं रिटायर किया हूँ,
टायर्ड नहीं था, लेकिन मजबूरन तो करना पड़ा, रिटायर हो गया। लेकिन अभी मेरा जो उम्र है, मेरा रिटायर्ड एज है बस 62, लेकिन मेरा जो बॉडी का जो एज है अभी भी दिखा रहा है कि 48। तो ये है कमाल। और मेरा जो बीएमआई है ये 23, मेरा बीएमआई अभी 23। तो ये तो मैंने टच कभी नहीं करेगा। और पानी में जो पीता हूं ना, पानी कम से कम दिन में अभी भी 4 लीटर पानी में ले लेता हूँ। बहुत सारी मुझे बहुत ये कम्युनिटी मुझे फायदा दिया और ये एसोसिएशन मुझे बहुत फायदा दिया। डेफिनेटली दोस्तों, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका फायदा जरूर लें। थैंक यू सुनील भाई। वंडरफुल वंडरफुल सम भाई। इसीलिए बोलते हैं ना, मनुष्य के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं, हारा वही जो बार बार लड़ा नहीं। आप जैसे लड़ने वाले के लिए दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं। तो नाउ विल मूव टू ओवर टू ममता बत्रा from Barangpur. Thank you. Good evening, all. Myself, Mamta, wife of lovable person Anu Kumar Patra, mother of 2 children. मेरा स्टोरी बताऊं तो मेरा बचपन से था, थोड़ा जॉइंट पेन था। उसी समय मुझे पता नहीं था कि मेरा पेन का नाम क्या है। उसके बाद शादी के बाद जब मेरा टेस्ट किया तो पता चला मेरा रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसी के वजह से मैं इतना सीवियर पेन हो गया तो मैं बेड से नहीं उतर पाई। ऐसे भी मैं पानी का एक ग्लास भी पकड़ नहीं पा रही थी। जैसे भी पीने के लिए भी 2 हाथ लगा के भी पीने से भी नहीं पी पा रही थी। ऐसा मेरा प्रॉब्लम हो गया था। उसी की वजह से मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिए। मेडिसिन के साथ साथ स्टेरॉइड भी दिए थे, जिसके स्टेरॉइड के जो दिए थे जिसके वजह से मेरा वेट 62 से 72 तक पहुंच गया। जैसे 3 महीने के अंदर मेरा 10 केजी वेट बढ़ गया। तो उसी समय मुझे वेट का इतना मतलब टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरा पेन को कम करना था मुझे। उसी हिसाब से जब थोड़ा पेन कम हुआ, उसी के बाद पता चला वेट ज्यादा होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। वो तो मैं नीचे बैठ नहीं पाई, नीचे मतलब कुछ भी काम भी नहीं कर पाई, सबका प्रॉब्लम मुझे हुआ। उसी के दौरान ऐसी एक प्रोग्राम में मेरे को मेरे हस्बैंड लेके आए और मैं सुनी और होलिस्टिक वे में कैसे मैं मतलब मैं मेरे को ठीक रख पाऊँ, वो रास्ता में ढूंढी चुनी। उसी के बाद हम दोनों और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट दिलीप मिश्र एंड प्रतिभा मिश्र के साथ बात किए। हम लोग का उनके साथ बात होने के बाद वो जो बोले मेरे को जो बोले मैं किया। और जो जो अभी बोले दिलीप मिश्र जी ने जो बोले 6 पिलर्स के बारे में, मैं वही 6 पिलर को मेंटेन किया। मैं तो थोड़ी मतलब ऐसे रूम से बाथरूम तक नहीं जा पा रही थी उसी समय। आज मैं 10,000 स्टेप तक मैं चलती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ और वॉकिंग एक्सरसाइज, घर का काम, खुद का काम, बच्चों का काम सब मैं करती हूँ। आज मैं हेल्दी मतलब हेल्दी वे में जर्नी कर रही हूँ। अभी मैं हेल्दी हो रही हूँ और आगे जाके भी हेल्दी और हो जाऊंगी। और उसी के साथ मैं तो हेल्दी रहूंगी और बहुत सारे लोगों को हेल्प करूंगी सब हेल्दी रहने के लिए। ओके, थैंक यू। यस यस मैम, बहुत अच्छा बात बोले। आप अगर होलिस्टिक वे फॉलो करेंगे, खाली डायबिटिक नहीं, आपका बॉडी में जो जो डिजीज होगा वो तो भागता रहेगा। दोस्तों, आज का ये सेशन हम यहीं से क्लोज करते हैं। आप सबसे बात करते हुए, आप जो लीडर्स थे, आप सबसे सबसे सुनते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। ये सेशन जबरदस्त था। जाने से पहले एक बात, हमारा गुरुजी जो दिलीप मिश्रा जी, जिन्होंने आज ये वर्ल्ड डायबिटिक डे में एक स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने बनाए कि डायबिटिक कैसे होता है, बेसिक से लेकर डॉक्टर प्रभात मिश्रा जी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और दिलीप जी से भी सीखने के लिए मिला कि कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं
कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। सुजन जी, श्याम सुंदर जी, इस सबसे अपना खुद का एक्सपीरियंस सीखने के लिए मिला। आप सबके लिए एक जोरदार, आप अगर परमिशन देंगे दिलीप भाई, तो आप अगर सबको अनम्यूट कर सकते, एक जोरदार धमाकादार ताली के साथ हम लोग ये सेशन यहीं पे रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार, और गुरुवार को तो रेगुलर होता है। ये आपको इनविटेशन आपको मिल जाएगा। सबके लिए एक जोरदार ताली। गुड नाइट।